हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स। आज हम सीखने वाला है कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग के लिए जितने सारे लाइन्स होते हैं उस लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर आवर बेंगली ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ড্রয়িংয়ে যে সমস্ত লাইনগুলো আমরা ড্র করি, যে সরলরেখাগুলো ড্র করি, সেই সরলরেখাগুলো কি প্রকারের হয়, কতগুলো সরলরেখা হয়, এই সম্বন্ধে আজকে আমরা পড়ব। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टोटल लाइन जितना है उसे हम 9 পার্ট में ডিভাইড करते हैं। ठीक है, আমাদের সমস্ত লাইনগুলোকে, যতগুলো লাইন আছে সেগুলোকে টোটাল 9টা ভাগে ভাগ করা যায়। এই 9টা ভাগ কি কি আমরা দেখব। আমাদের ফার্স্ট এবং ইম্পর্টেंट যেটা লাइन সেটা হচ্ছে ऑब्जेक्ट लाइन। সেটা হচ্ছে ऑब्जेक्ट लाइन। हमारा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन आता है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट लाइन। इस लाइन से क्या होता है, दिस लाइन इंडिकेट्स the outline and visible edge of the object, so it is important, thus it should be thick। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं ना, मान लो कि पेंटागन है, तो पेंटागन का जो आउटलाइन होता है, जो 5 लाइन हमारा वो पेंटागन को दिखाएगा, वो उसे हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। ठीक है बेंगली ভিউয়ার্স, ধরে নাও আমরা একটা পেন্টাগন আঁকছি, তাহলে পেন্টাগন আঁকার জন্য কি হবে, পঞ্চভুজে যে 5টা লাইন আমাদেরকে পেন্টাগনটাকে দেখাবে, সেই 5টা লাইনকে আমরা বলবো অবজেক্ট লাইন। ক্লিয়ার? এই লাইনটা শুড বি থিক, মানে মোটা হতে হবে অবশ্যই। ঠিক আছে, এই লাইনটা কী হবে, তাহলে মোটা হবে। ওকে, এই লাইনের ছবিটা কীরকম হবে, ছবিটা আমরা দেখে নেব এখন। हिंदी व्यूअर्स, हम लोगों ने ये जो लाइन हम कहा ऑब्जेक्ट लाइन, इसका पिक्चर कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। ओके, ये देखो गाइस, स्क्रीन में जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ऐसे थिक लाइन होता है, मोटा होता है वो लाइन। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है। तो देखो अभी हमारा दूसरा लाइन आ जाएगा। दूसरा लाइन जो है ना, उसे हम कहते हैं डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं, डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। The dimension and extension lines are used for dimensioning an object. This line is used for construction work also. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसका हम ड्राइंग बनाया है, उस ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट का डायमेंशन मेंशन करने के लिए ये लाइन इस्तेमाल किया जाता है। और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट एक्सटेंशन करना है हमें, तो हम इस लाइन के मदद से करेंगे। ठीक है बेंगली ভিউয়ার্স, আমাদের এই লাইনটা কী কারণে কাজে লাগে, যে কোনো একটা ড্রয়িং ধরো আমরা বানিয়েছি কোনো একটা অবজেক্টের, সেই ড্রয়িংয়ের কোন পার্টটা কত সেন্টিমিটার লম্বা বা কোনটা কত মিলিমিটার লম্বা, সেই ডাইমেনশনটা বোঝানোর জন্য এই লাইনটা আমাদের ইউজ করা হয়। অথবা ধরো যে কোনো একটা অবজেক্ট আছে, যে অবজেক্টটাকে আমাদের বর্ধিত করতে হবে বা এক্সটেনশন করতে হবে, তাহলে এই লাইনটার প্রয়োজন আমাদের হবে। ঠিক আছে, এই লাইনটা কি হবে, ইট শুড বি থিন, এটা পাতলা হতে হবে অবশ্যই। ओके, तो चलो गाइज, हम इस लाइन का पिक्चर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। बेंगली ভিউয়ার্স, আমরা এই লাইনের ছবিটা কীরকম হয় সেটা দেখে নিচ্ছি। এই যে স্ক্রিনে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ, এরকম পাতলা লাइन হবে এটা। এই লাইনটা কি হবে, পাতলা হবে। हमारा नेक्स्ट लाइन आ जाएगा हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या होता है, दिस लाइन इंडिकेट्स द हिडन पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज़ नो विजिबल इन दैट व्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हमने किया है, तो उसका सामने वाला जो पार्ट है वो तो हमें दिखाई देगा, वो हम ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ करेंगे। और उसका बैक साइड का जो पोर्शन रहेगा ना, बैक साइड का पोर्शन तो हमें सामने से दिखाई नहीं देगा, तो बैक साइड जो पोर्शन रहेगा उस हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। बेंगली ভিউয়ার্স, আমরা কি করব, হিডেন লাইন দিয়ে একটা অবজেক্ট আছে, অবজেক্টের পেছন দিকের যে পোর্শনটা, সেই পোর্শনটাকে আমরা হিডেন লাইন দিয়ে ড্র করব। মানে একটা অবজেক্টকে যদি ধরে নাও আমরা সামনে থেকে দেখছি, তাহলে সামনে থেকে আমরা সব পার্টগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেই পার্টগুলো আমরা অবজেক্ট লাইন দিয়ে ড্র করব। আর সামনে থেকে যে সমস্ত পার্টগুলো দেখা যাচ্ছে না, হিডেন হয়ে আছে, সেই সমস্ত পার্টগুলোকে আমরা হিডেন লাইন দিয়ে ড্র করব। মানে একটা অবজেক্টকে আমরা সামনে থেকে দেখছি, সেই অবজেক্টের পেছনের দিকের যে পার্টগুলো সেগুলো আমাদের हिडन लाइन দিয়ে ड्रॉ করতে হবে। ओके, ये हिडन लाइन का पिक्चर कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। বেঙ্গলি ভিউয়ার্স, আমরা এই হিডেন লাইনের ছবিটা দেখে নিচ্ছি যে কীরকম হবে। স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, এই ছবিটা হিডেন লাইন হবে এইরকম, যেটা কি হবে, একটা
ডটেড লাইন হবে, যেটা কি হবে একটা ডটেড লাইন হবে। ওকে, এই ডটেড লাইনটা যেটা দেখছো, এই ডটেড লাইনটা দেওয়ার একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা কি হচ্ছে, যে ডটগুলো দেখছো, ডটগুলো হবে 3 সেন্টিমিটার, আর যে গ্যাপগুলো হচ্ছে, গ্যাপগুলো হবে 1 সেंटीमीटर। মানে डॉट और गैपर रेशियोटा है 3:1। हिंदी व्यूअर्स, इमेज में स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है ना, ये इमेज को हम हिडन लाइन कहते हैं। ये हिडन लाइन ड्रॉ करने का एक रूल्स है। क्या रूल्स है कि ये जो डॉट दिख रहे हो ना, डॉट वाला जो पोर्शन है ये होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और जो गैप है दो डॉट के बीच में जो गैप है ना, वो होगा 1 सेंटीमीटर। मतलब डॉट और गैप का रेशियो क्या होगा 3:1। ओके, और ये जो लाइन होगा ना, ये मीडियम होगा, ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा थिन होगा, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला लाइन क्या होता है, अगला लाइन होता है कटिंग प्लेन लाइन। इट इज़ ए थिक लाइन विथ 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट डैशेस ऑल्टरनेटली। क्या होता है, एक लॉन्ग डैश होता है और उसके बाद 2 शॉर्ट डैशेस होता है, वो ऑल्टरनेटली चलता रहता है। ठीक है, द डैशेस शुड बी इवनली स्पेस्ड। इट इज़ यूज्ड वेयर ए पार्ट इज टू बी शोन इन सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है एक ये जो कटिंग प्लेन लाइन होता है ना, एक थिक लाइन होता है, जो क्या होता है, एक लॉन्ग डैश होता है और उसके बाद 2 शॉर्ट डैशेस होता है, और ये ऑल्टरनेटली चलता रहता है। ये लाइन क्या होता है, ये लाइन हमारा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर भी किसी एक मशीन है, मान लो कि इसे किसी एक मशीन है या तो फिर कोई डिवाइस है, उसका किसी भी एक पार्ट को हमने काट दिया, तो वो कटिंग पोर्शन जो है ना, वो कटिंग पोर्शन को दिखाने के लिए ये लाइन इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर भी ये लाइन इस्तेमाल होगा तो हम समझ लेंगे कि वो किसी मशीन या तो फिर किसी डिवाइस का कटिंग पार्ट है। ओके, फॉर आवर बेंगली ভিউয়ার্স, এই কাটিং প্লেন লাইনটা কী জিনিস, কাটিং প্লেন লাইনটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা থিক লাইন, মানে মোটা লাইন, যেটা কি করে, একটা যার মধ্যে একটা লং ড্যাশ থাকবে এবং 2টো শর্ট ড্যাশ থাকবে, এবং এই প্রসেসটা অল্টারনেটলি চলতে থাকবে। একটা লং ড্যাশ, 2টো শর্ট ড্যাশ, আবার একটা লং ড্যাশ, তারপরে 2টো শর্ট ড্যাশ। ঠিক আছে, এই লাইনটা কি করা হয়, আমাদের কি কারণে ব্যবহার করা হয়, যে কোনো মেশিন বা যে কোনো ডিভাইস তার যে কাটিং পোর্শনটা আছে, ধরো কোনো একটা মেশিনের ভেতরের পার্টটা আমি কেটে দেখাতে চাইছি, তাহলে সেই পোর্শনটাতে আমি এই কাটিং প্লেন লাইনটাকে ইউজ করব। ओके, ये लाइन का इमेज हम लोग देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है ना, ये एक थिक लाइन है, और देखो ध्यान से देखो कि एक लॉन्ग डैश है और उसके बाद 2 शॉर्ट डैश है ऑल्टरनेटली। ओके, और हर सारा जो डैश है, सभी डैश इवनली स्पेस्ड है, मतलब सभी डैश के बीच में समान गैप दिया गया है। ठीक है, और एक रूल है इधर कि ये लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश कितना होना चाहिए। लॉन्ग डैश अगर मान लो कि 15 मिलीमीटर का होगा, तो शॉर्ट डैश जो है ना वो 3 मिलीमीटर का होगा, और जो गैप रहेगा उसके बीच में वो गैप 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। तो लॉन्ग डैश इस टू शॉर्ट डैश इस टू गैप, इसका रेशियो क्या होगा 15:3:1। ओके बेंगली ভিউয়ার্স, লং ড্যাশগুলো যদি হয় 15 মিলিমিটারের, তাহলে শর্ট ড্যাশগুলো হবে 3 মিলিমিটারের, আর গ্যাপগুলো হবে 1 মিলিমিটারের। ওকে, এই রেशियोটা हमारे এটা করতে হবে। ঠিক আছে, हमारा अगला लाइन होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या है, दिस लाइन इंडिकेट्स द मशीन पार्ट्स वेयर स्मॉल पोर्शन इज टू बी रिमूव्ड टू शो इनर डिटेल्स। मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट ब्रेक लाइन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर भी किसी एक मशीन पार्ट छोटा है, वो बहुत छोटा है, उसे डिटेल्स या तो फिर बड़ा करके दिखाने के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जिधर ये शॉर्ट ब्रेक लाइन दिखाई देगा उधर समझ लेना है कि ये जो पार्ट्स हमें दिख रहा है, इसका साइज़ एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, वो एक्चुअल साइज उसका छोटा है, उसका डिटेल्स दिखाने के लिए ये बड़ा किया गया है। ठीक है, इसके लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन इस्तेमाल करते हैं। बेंगली ভিউয়ার্স, শর্ট ব্রেক লাইন আমরা কী কারণে ইউজ করি, যে মেশিনের কোনো একটা ছোটো পার্টকে ডিটেলসে দেখানোর জন্য আমরা যদি বড় করে সেটাকে দেখাতে চাই, তাহলে আমাদের শর্ট ব্রেক লাइन ব্যবহার করতে হবে। ओके, तो चलो हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का इमेज देख लेते हैं। क्या होता है, ये एक थिक लाइन होता है। ठीक है, ये स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा है इसे ड्रॉ कर लो, इसे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहा जाता है। तो हमारा अगला लाइन क्या होने वाला है, अगला लाइन है लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये क्या होता है,
दिस लाइन इज यूज्ड टू शो लॉन्ग पार्ट्स इन स्मॉल स्पेस वेयर इट्स क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या हुआ है, मान लो कि किसी एक मशीन है, बहुत बड़ा पार्ट्स है उसका, तो इतना बड़ा तो हमारा ड्राइंग शीट नहीं होगा ना। तो बड़ा पार्ट को जब हम छोटा करके ड्राइंग करते हैं ना, तो तब हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम उस मशीन का बड़ा पार्ट को छोटा करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम रहेगा, लेकिन टोटल साइज जो है उस पार्ट्स का वो बड़ा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मशीन का बड़ा पार्ट को छोटा दिखाने के लिए हम लॉन्ग ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो फटाफट इसका इमेज देख लेते हैं। स्क्रीन में जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना कि ये एक थिन लाइन होगा। ओके, ये एक थिन लाइन होना चाहिए। गाइस, हमारा अगला लाइन क्या होता है, अगला लाइन होता है फैंसन लाइन। फैंसन लाइन क्या है, इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मान लो कि हम ड्राइंग शीट में किसी भी एक जगह पर एक मशीन पर ड्रॉ कर दिया जो एक्चुअल में उधर होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो किसी और जगह होगा, लेकिन हमें मजबूरन उस पार्ट को इसी जगह पर ड्रॉ करना पड़ रहा है, तो तब हम फैंसन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द पार्ट वेयर इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, तो चलो फटाफट इसका इमेज देख लेते हैं। स्क्रीन में जो इमेज दिखाई दे रहा है ना, इसे फैंसन लाइन कहा जाता है। देखो, एक थिन लाइन होता है और वो भी डॉटेड लाइन होता है। ठीक है, तो इसे हम फैंसन लाइन कहते हैं। गाइस, हमारा अगला लाइन क्या होता है, डिटो लाइन। ये वाला जो लाइन है ये हमारा आज का सेशन का लास्ट लाइन है। ठीक है, इसे कहा जाता है डिटो लाइन। ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर रिपीटेड डिटेल्स वेयर सम टाइप्स ऑफ कट ऑन पार्ट्स आर टू बी शोन। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लाइन क्या होता है, रिपीटेड डिटेल्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लो किसी मशीन का पार्ट है, उस मशीन पार्ट को हम कट कर दिया और कट करने के बाद क्या कैसे दिखेगा वो पार्ट्स, वो हम दिखाना चाहते हैं, तो ये डिटो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो गाइस चलो फटाफट हम डिटो लाइन का इमेज देख लेते हैं। स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है ना, वो डिटो लाइन का इमेज है। क्या है कि ये एक डॉटेड लाइन है और एक मीडियम लाइन है। ठीक है, डॉटेड मीडियम लाइन, इधर क्या होता है, दो शॉर्ट डैशेस रहता है ऑल्टरनेटली। ठीक है, इधर जो डॉट रहता है और गैप रहता है उसका नाप क्या होना चाहिए, डॉट रहेगा हमारा 3 मिलीमीटर का और जो गैप रहेगा वो होगा 5 मिलीमीटर का। ओके, और दो शॉर्ट डैशेस जो रहेगा उसके बीच में गैप रहेगा 1 मिलीमीटर का। मतलब क्या हुआ, पहले एक शॉर्ट डैश, उसके बाद 1 मिलीमीटर का गैप, फिर एक शॉर्ट डैश, उसके बाद 5 मिलीमीटर का गैप, उसके बाद फिर एक शॉर्ट डैश। ठीक है, आप लोग इमेज में ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज आज इधर हमारा सेशन ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल में हम ITI के सिलेबस के अनुसार रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो ITI के स्टूडेंट हैं उसको पढ़ाई में बहुत सुविधा होगा, इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।